Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science educator. Today we are discuss about chemistry chapter 4, carbon and its compound. And then today's topic is formation of single, double or triple covalent bond. What is the today's topic is formation of single, double or triple covalent bonds and ene or ine. What is ene, what is ene or what is ine, and then organic compound. What is organic compound? Then we are discuss about first of all recap करेंगे जो हमने इससे अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इन इंट्रोडक्शन वी नो अबाउट what is the atomic number, what is the atomic mass, what is the structure of carbon, what is the Latin name of carbon. Latin name of carbon is known as the carby, and which means that coal. Then we know about we are discussed about in previous classes what is the position of carbon in universe, what is the position of carbon in human body, and then we are discuss about what is the position, what is the atomic what is the number, what is the amount of carbon that are present in earth crust is 0.02%. Then we are discuss about carbon are present in free state and combined state. Carbon occur as a free or combined state, both state. Free state like carbon occur is coal, charcoal, lamp-black, which is amorphous form. And what is amorphous form? Amorphous form means not a definite shape. Then we are discuss about allotropes like diamond, graphite and fullerene. Then we are discuss about classify as the second state, which is combined state like carbon dioxide, carbon monoxide, MgCO3, ZnCO3, calcium carbonate. These all are. And then we are discuss about allotropes of carbon. First of all we are discuss about what is allotropy is a phenomena. Allotropy है. Allotropy is what? Allotropy is phenomena of existence of element in two or more form. Existence of element in two or more form or different form. क्या existence exist कैसे करते हैं, एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक और एक से ज्यादा फॉर्म में, किसमें, बट सेम फिजिकल स्टेट. ठीक है. देन वी आर डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन. Then we are discuss about diamond, graphite and fullerene. Diamond is a 3D network structure. Diamond connect in a tetrahedrically. Diamonds are hard. Diamond has a high density. Then diamond has no free of electron. Diamond do not conduct electricity. We all are discuss about in diamond. What are the uses of diamond? First of all, this is very important. Diamond is brilliance. Why diamond is brilliance? Because of its high density is not. Because of its shape. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये, व्हेन जब आप डायमंड की माइनिंग करते हो, डायमंड की माइनिंग करते टाइम जब आप डायमंड निकालते हो तो उस टाइम पे वो क्या नहीं होता, चमकता नहीं. उस टाइम वो अपना ब्रिलियंस नहीं दिखाता. उस टाइम पे जिस तरह की उसकी शेप होती है तो वो ब्रिलियंस नहीं दिखाता. वो ब्रिलियंस होता है, वो चमकदार होता है अपनी शेप की वजह से. जो शेप ऐसी होती है डायमंड की, इस तरह की जब शेप बन जाती है तभी वो चमकना स्टार्ट होता है, और इसी की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई ब्रिलियंस होता है. देन वी आर डिस्कस्ड व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमंड. डायमंड हैज 3 यूजेस. फर्स्ट, इन ज्वेलरी मेकिंग. सेकंड, इन डॉक्टर पर्पसेस लाइक to remove the cataract from your eyes. What is cataract? The opaque covering of an eye an eye layer is known as a cataract. And then we are discuss about diamond is used for cutting purposes. Diamond का use करते हैं cutting purposes. Like this is the glass lens, and this shape is according to this frame, and this frame will like this type. In glass cutting, diamond are used because diamond has a sharp edge. Then we are discuss about graphite. Graphite is what? Graphite is a 2D structure, and graphite has a hexagonal ring. Graphite has a weak van der forces. We are discuss about graphite is soft and diamond is hard. Because of graphite is soft, so it has low density, and graphite conduct electricity. What is graphite? The pencil leads, जो pencil की lead होती है is known as a graphite, and graphite conduct electricity because it has a free of electron. You know about this topic in class 10th chapter 3 physics. In physics you discuss about if any element has a free of electron, so it conduct electricity, and if element has no free of electron, so it does not conduct electricity. Then we are discovered what are the uses of graphite. Its uses as to make the pencil. पेंसिल बनाने में किसका यूज होता है? किसका? ग्रेफाइट का. बिकॉज इट्स लेट्स वर्क ऑन पेपर. देन इट सेपरेट्स इट्स ब्लैक बाउंड्री.
ऑन पेपर, ये सेपरेट करती है अपनी ब्लैक बाउंड्री किसके ऊपर, पेपर के ऊपर. देन वी आर डिस्कस अबाउट इन बैटरी पर्पसेस वी आर यूजेस एज ग्रेफाइट. देन वी आर डिस्कस अबाउट fullerene. Fullerene is a Buckminster fullerene. Fullerene is known as a Buckminster fullerene. Fullerene is known as a buckyball. Fullerene is known as a soccer ball. And fullerene has many shapes like cylinder, spherical, ellipsis form. Ellipsis form is known as a oval form. Then we are discussed about the most probable fullerene is Buckminster fullerene. Buckminster fullerene like C60 carbon. C60 carbon has hexagonal, 20 hexagonal and 12 pentagonal. 20 hexagonal fuses with hexagonal and pentagonal, and 12 pentagonal fuses with only hexagonal. Then we are discussing about bonding of carbon. Which type of bonding? Then carbon prefer the sharing of 4 electron, because carbon do not prefer the losing of 4 electron, and carbon do not prefer the gaining of 4 electron, because of the two main reasons. If carbon prefer the losing of 4 electron, it required a lot of energy. So carbon required a lot of energy for losing its 4 electron. ठीक है, like I was given an example. If you donate your body part, अगर आप कोई भी पार्ट अपना डोनेट करते हो तो आपको आपको बहुत पेन होता है. उसके लिए पेन को रिकवर करने के लिए आपको पेन होता है. देन आपकी सर्जरी होती है, उसको रिकवर करने के लिए आपको एनर्जी की मोर रिक्वायर होती है. दैट्स व्हाई दिस इज प्रेफर एज for losing of 4 electron. Then we are discussing about gaining of 4 electron. In like gaining of 4 electron, like as if this is your kitchen of your electronic configuration. ये kitchen है किसकी electronic configuration. In kitchen has two members. First is proton, second is neutron, and the outer and the boundary of kitchen. In the boundary of kitchen, electron are living. And the first boundary 2 electron are living, and the second boundary 8 electron are living, and third boundary 8 electron are also living. Then if the proton has 6 members, the proton has a 6 number of power, then electron comes 6 electron of power, then electron gets 4 extra electron, so it become 10, and 10 electron does not hold it 6, and 6 electron does not hold it this. These are not managing, both are not managing, so that's why it does not prefer the gaining of 4 electron. I was given in second example. If you take a second class of bag and take it's your own classes of bag, or the bag like as this or this, ठीक है. देन अगर आपने इस वाले बैग के अंदर अपनी 10th क्लास की बुक्स डाली, सो दिस इज नॉट होल्डेबल. बैग आर नॉट होल्डेबल. इट्स योर ओन क्लासेस बुक्स, बट 10th class bags holds second classes books. That's why it does not gain its 4 electron, because it does not hold its 4 electron, because nucleus has no more power to hold its 4 electron. Then carbon prefer as a sharing of 4 electron, because the other carbon atom has 4 electron, then the other carbon has then 4 electron, so 4 electron share with each other. Then one carbon atom complete its problem, then the second carbon atom completed its 4 problems. Then we are discussing about what is catenation. Catenation is a self-linking property of an carbon atom. What is the self-linking property of an carbon atom? This is a watch. I was taken as this watch, and this watch connected as many parts. This, and this watch connected as a many parts. So this property is known as the catenation. What is catenation? The self-linking property of an carbon atom. If a single piece of carbon atom connect with another piece of carbon atom by its own practice, this practice is known as a catenation. What is catenation? The self-linking property of an carbon atom. self-linking property किसी कार्बन एटम्स की जब self-linking property मतलब अपने आप खुद से जब self link होते हैं कार्बन एटम एक दूसरे से, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? catenation. And we are discuss about what why carbon is known as the versatile nature of carbon. Versatile nature of, what is the versatile nature of carbon? Because carbon shows the property of catenation, and carbon also shows the property of tetravalency. What is tetravalency? We are discussed about in previous classes. What is tetravalency? Carbon makes 4 covalent bonding. When carbon makes its 4 covalent bonding, and this 4 covalent bonding is
known as a tetravalency. Then we are discussing about bonding. Bonding like ethene, eth, meth, prop, but, pent. These are attract with other hydrogen parts. So these bonding we are discussed about in previous classes. So I hope you clear all the things that I was revised in the previous classes. So okay, सो हेलो बच्चों, आपको हमारा रिकैप क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल और कोवलेंट बॉन्ड. ओके, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बताऊंगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बताऊंगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बताऊंगा. एक कार्बन, दो कार्बन. अभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जब फॉर्मेशन बताऊंगा तो क्या होता है, इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने होंगे. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4. इसके पास भी 1 2 3 4, यही होगा. चलो अब एक बात बताओ, ऐसा क्या इसके साथ मैनेज होगा, इसके साथ हाइड्रोजन मैनेज होगा, बिकॉज उसके को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर होती है. मेनली कार्बन में हम यही करेंगे, CH4 CH C2H6 C3H8 मेनली. तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लेंगे, बिकॉज एक बार में एक बॉन्ड बनाएगा, तो इधर ही ले लिया, तो इधर तोड़ना आप लेंगे, इधर ले चुके हैं. हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन के अपने वो लगा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका. वैसे ही इस वाले कार्बन में लिया 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का. When we are making, then we makes bonding of carbon. We mix. This is also done. This is also done. Then carbon, hydrogen makes its bonding. Okay. Then the turn is carbon. Carbon makes. Then the other carbon makes its completed octet. And these all are points makes a single bond. This is known as the formation of single bond. बिकॉज जब कार्बन एक कार्बन 1 2 1 2, जब ऐसे 2 लाइन होती है तो क्या बनती है, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग. जब ऐसी एक लाइन बनती है तो क्या होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग. अब इसमें बताना, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन कभी क्या नहीं करता, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग करता ही नहीं है, बिकॉज इसको रिक्वायर ही एक की होती है. डबल कोवलेंट बॉन्डिंग तो करेगा नहीं, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट एक की होगी. तो कार्बन किसी अदर कार्बन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्डिंग करेगी, इसने पहले तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग. फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग विद अदर कार्बन एटम. आई होप दिस इज क्लियर. फिर से बताता हूं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, हमें क्या करना है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाने सब में. 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड. इनके साथ एक हाइड्रोजन लिया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड. एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, सबके सिंगल बॉन्ड बना दो. एक बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड. ये मत कहना कि भैया ये भी बना रहे हैं, ये कैसे बना सकते हो, ये दोनों किसके साथ बनेंगे, अब बनेंगे ही किसके साथ. मान लो हाइड्रोजन ने तो अपने बना लिए, अब क्या बना रहा है, कार्बन बना रहा है. कार्बन ने ये बना लिया अपने 2 4 6 8, ये वाला कार्बन बनाएगा 2 4 6 8 बन गए. अब एक बात तो, जब दो पॉइंट आमने सामने होगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे, सिर्फ एक बॉन्ड. अगर दो पॉइंट आमने सामने होंगे तो कितने बनेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, बट 2 ही पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक दूसरे के सामने है, कितना बनेगा, 1 बनेगा. अगर 2 पॉइंट एक दूसरे के सामने है, 2 पॉइंट के, तो कितने बनेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड. आई होप फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्लियर होगा या नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्लियर है. फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगी, 1 कार्बन 2 कार्बन. और मेनली दिस इज द प्रॉपर्टी कि कार्बन जब डबल कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगी तो सिर्फ
एटलीस्ट एक डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप सब में कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो इधर आपने हाइड्रोजन ले रखा है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बनाएगा, तो कितने एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। क्या किया इसने, एक दो, दो अपने कार्बन ले लिए, फिर दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर एक बचा और एक बचा। इसने भी एक 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 बचा, एक बचा। इसने क्या किया, हाइड्रोजन लगाए, एक 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 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, एक। अब क्या करेगा, ये कार्बन बनाएगा बॉन्ड, 2 4 6 8, 2 4 6 8 बन गए, बन गए, बन गए। ठीक है, अब इनको मैं ऐसे मैच कर सकता हूँ, 1 2 बन गए। क्या, डबल, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, और ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ये क्या बना, C2 कितने, C2 H1 2 3 4 H4, C2 H4। पहला क्या था, C2 H6। अब क्या बनाएंगे, थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन, दो कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर, बना दो एक कोवलेंट, एक कोवलेंट। अब क्या बनेगा, ये कितने बनेंगे, दो तो ये हो गए, फिर कितने बने, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसने बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। क्या बन गया, एटलीस्ट 1 2 3, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, कितने बने, C2H2। इसमें कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में जितने आप कार्बन लोगे उतने ही आपके हाइड्रोजन ही बनेंगे, C2 लोगे तो H2 बनेंगे। ओके, आई होप क्लियर है। आई होप फॉर्मेशन ऑफ डबल, ट्रिपल और सिंगल क्लियर होंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सिंगल बनाऊंगा, एक कार्बन, एक कार्बन, एक एक बॉन्ड बनाना है, 1 2 3 C2 1 2 3 4 5 6 H6, कितने, C2 H6। सही है भाई, सही है, ठीक है। थर्ड डबल बॉन्डिंग, 1 2 1 2 1 2, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, C2 H1 2 3 4, C2 H4। ठीक है, आगे थर्ड ट्रिपल, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कितने, C2 H2। आई होप क्लियर है, डबल, ट्रिपल और सिंगल को लेकर। देन वी आर डिस्कस अबाउट एन इन आइन, एन इन आइन, एन इन आइन। बच्चों दिस इज वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक, एन इन और आइन, एन इन और आइन। एन कब बनता है, जब आप अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, जब आप अपनी बॉन्डिंग में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यूज करते हो, ओनली यूज single covalent bond, so this type of bond is एन bond। मान लो आपने C2 लेके चले हो और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यूज करे, तो आपके C2 क्या होता है, एथ या मैथ, मैथ, और लग जाएगा एन, तो क्या बन जाएगा, मीथेन। अगर आप यूज करते हो डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक बार एटलीस्ट एक ही बार बनेगा, ज्यादा बार बनेगा ही नहीं। आपने सोचा इधर बना दो, फिर इधर, फिर इधर, नहीं, 1 2 3 4 बनी क्या, फिर ये तो वही गलत बन गई, 1 2 3 4, ये ऐसा बनता ही नहीं है, C2H2, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्या एटलीस्ट एक बार आप क्या यूज करोगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड यूज करोगे, तो वो क्या होती है, इन, वो क्या होती है, इन। अगर आपने इसमें C3 लिया तो क्या बन जाएगा, एथ मैथ प्रोप, प्रोपीन। वाइन क्या होती है, जब आप एटलीस्ट ट्रिपल कोवलेंट, एक बार 3 कोवलेंट बॉन्ड एक साथ लेते हो, जैसे कार्बन ले 1 2 3, एक बार में ही ले लिए तीनों कोवलेंट बॉन्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, आइन, उसे क्या बोलते हैं हम, आइन। एंड दिस आइन नोन एज अ प्रोपाइन, प्रोपाइन। ये क्या है, मिथाइन, मिथाइन। आई होप क्लियर है, ओके।
वेल डन बच्चों, आपको जल्दी जल्दी क्लियर है। एक सेकंड बच्चों, चौक ले लें एक ध्यान से। एथ, मैथ, प्रॉप, ब्यूट, पेन। 1 2 3 4 5 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब क्या आ गया? इन, इन, आइन। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड एक साथ, तीन बॉन्ड एक साथ, ये हो गया। अब एक बोन बनाऊंगा, एक क्या बनाऊंगा? एक बनाऊंगा एलिमेंट। ओके कंपाउंड। मान लो आप क्या लोगे? एक कार्बन वाला लोगे, दो, चलो तीन वाला लेते हैं, प्रॉप। क्या लेते हैं? प्रॉप। ठीक है बच्चों का भैया जी प्रॉप ले लो, बच्चों क्या भैया जी क्या ले लो? प्रॉप। ठीक है अब बच्चों कहते हैं, एक सेकंड, बच्चे कहते हैं भैया जी प्रॉप में इन लू, आइन लू, आइन लू, कुछ भी बोल दो। चलो बच्चे ने बोल दिया भैया जी एन लेके दिखा दो। ठीक है प्रॉप में कार्बन कितने? 3, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है बनाना एन है, मतलब सारे में सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है अब कितने? इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, चार बन गया। इसको एक दो तो है ही, 3 4, इसको एक दो तो है ही, 3 4 है। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बच्चे ध्यान दिया? 3 लिए, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन। ठीक है बच्चे इनका भैया एन बनाना है, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब इसको क्या चाहिए? इसको क्या करने के लिए? अपने आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इसका एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस वाले का। फिर इसने कहा एक दो तो है ही मेरे पास, इसको एक और दो की जरूरत थी। इसने क्या कहा? मेरे पास एक है तो एक दो तीन इसने भी लगवाए। ठीक है तो क्या बन गया? C3 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। क्या बन गया? C3H8। दिस इज द प्रोपेन, दिस इज द प्रोपेन। अब कह रहा भैया इसी को ना ईन बना दो, ईन बना दो, प्रोपीन। क्या बना दो भैया? प्रोपीन बना दो। बच्चों स्पेलिंग गलत थी, मैसेज तो कर दिया करो। बच्चों ने कहा भैया इसको ईन बना दो। मैंने कहा ठीक है बच्चों की ये बात भी कर देते हैं हम। ठीक है प्रोपीन में डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। बताओ डबल बॉन्ड इधर ले लूं, इधर ले लूं? इधर ले लेता हूं। एक इधर एक है, एटलीस्ट एक बार डबल आएगा। इसमें क्या है? एक कार्बन है, कितने चाहिए? 1 2 3, 3 बॉन्ड चाहिए। इसमें 1 2 3 है, कितने चाहिए? एक चाहिए। इसमें 1 2 है, कितने चाहिए? 1 2 है, कितने चाहिए? एक और दो। क्लियर? बना दो H H H H H H। बन गया। कितने? 1 2 3, C कितने? 3, 1 2 3 4 5 6, C3H6, C3H6। मैंने कहा भैया इस बार इसको यहाँ पे कर दूं। ठीक है तो इसको यहाँ से फिर से बना ही देता हूँ, फिर से बना दो। 1 2 3, 1 2 3, एक बार इधर दो ले लिया, यहाँ सिंगल। ठीक है अब यहाँ 1 2 है, फिर 3 4 चाहिए। यहाँ 1 2 3 है तो 4 चाहिए। यहाँ 1 है तो 1 2 3 लग गया। बना दो H H H H H H H। कितने? 1 2 3, C3 है। H 1 2 3 4 5 6, H6 है। दोनों में सेम आ गया। ठीक है अब मैं इसको क्या करता हूँ? ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूँ, आइन। ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा तो 1 2 3 प्रॉप ले लिया। अब मैं यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, चलो यहाँ लगाता हूँ। 1 2 3, इधर 1 2 3 लग रखे हैं तो एक इधर लग जाएगा हाइड्रोजन। इधर 1 2 3 है तो एक ही चाहिए। ठीक है इधर एक है तो 1 2 3 लगा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इधर कितने? 1 2 3, C3 है, H 1 2 3 4, C3H4। क्लियर है? ओके तो आपको एन इन आइन भी समझ आ गया होगा और उसकी बॉन्डिंग भी बनानी आ गई होगी। ठीक है अब डिफरेंस क्या है? एक चीज और,
मॉलिक्यूलर मास, कंप्लीट स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर। देखो मॉलिक्यूलर, कंडेंस, कंडेंस और कंप्लीट। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल, कंडेंस स्ट्रक्चर और कंप्लीट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर में क्या होता है, अगर आपने सी कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, और उसके अंदर एक लाइन मतलब C2 में कितने थे, जब एन बनाओगे, सिर्फ एन की बता रहा हूँ, C2 है तो C एक, एन एक, एक इधर, एक एक, C बना लिया, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2, C2 है, H कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब C2H6। जब आप इस फॉर्म में लिखते हो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म, C2H6। कंडेंस क्या होती है, कंडेंस क्या होती है, कंप्लीट। पहले कंप्लीट बना के दिखा देता हूं, एक, यही होगी कंप्लीट स्ट्रक्चर, 1 2 C2, 1 2 3 4 5 6 H6, ठीक है। ये होती है कंप्लीट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर क्लियर। कंडेंस कैसी होती है, आपको अलग अलग लिखना होता है, 1 2 3, H कितने हैं, 3 है, किसके साथ, एक C के साथ, कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड, फिर कितना है, C है, 1 2 3 H 3 है, H 3, ये होता है स्ट्रक्चर कंडेंस। H जहां से स्टार्टिंग होती है, H 1 2 3 H 3 है, C 1 है, ठीक है, फिर एक क्या लिया, बॉन्ड लिया, फिर क्या आया, C आया, C, H कितने, 1 2 3 H 3 है, ये होता है स्ट्रक्चर कंडेंस स्ट्रक्चर। एक और लेता हूं एग्जांपल, मान लो C3 लिया, क्या लिया, C3 लिया, C3 लिया तो कितना आएगा, यहीं पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, C3 1 2 3, सब में क्या ले रहा हूँ मैं, अभी एन ले रहा हूँ, एक कार्बन, एक है तो कितने चाहिए, 1 2 3 चाहिए, इसमें 2 है तो कितने चाहिए, 1 2 चाहिए, इसमें एक है तो 1 2 3 चाहिए, कितना, H H H H H H H H, कितने, 1 2 3, C3 है, H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, H 8 है, ये हो गया। ये आता है, ये भी आता है। कंडेंस में क्या बनेगा, 1 2 3, H कितने हैं, 3 है, C कितना है, 1 है, माइनस किया, अब आता है C, H कितने हैं, 1 2 H2, फिर एक माइनस आएगा, फिर C लेंगे, H कितने हैं, 1 2 3, ऐसे बनेगा कंडेंस। क्लियर है, ओके, क्लियर है, क्लियर है, ओके। देन आता है आपका क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आपको एन भी बता दिया, इन भी बता दिया, आइन। क्लियर है। अब मैं बताता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मेनली नेचुरल वाले। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से देखना। एक होते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं फंक्शनल, एक होते हैं क्या, फंक्शनल, हैलोजन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। पूरा रफ करूं पहले तो। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे अब हम, ये तो बेसिक था। एक होते हैं हमारे हाइड्रोजन, एक होते हैं कंपाउंड की फॉर्म में, हैलोजन, हमारे एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये होते हैं कंपाउंड। अभी हम हाइड्रोजन पर, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एक टाइप का होता है, किसकी, एल्कीन, एल्केन, एन लगता है। अनसैचुरेटेड होता है एल्काइन और एल्कीन, LKYN नहीं होता, एक होता है, और एक LKNE, ALKENE, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, ठीक है। हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 टाइप की होती है, एक हाइड्रोकार्बन और एक कंपाउंड की फॉर्म में। किस फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं।
हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड होता है वो एल्केन होता है, जो अनसैचुरेटेड होता है वो एल्काइन होता है और एल्कीन होता है। ध्यान दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक हाइड्रोकार्बन होता है, एक कंपाउंड की फॉर्म में होता है। हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड अल्केन होता है, अनसैचुरेटेड एल्काइन और एल्कीन होता है। आप सबसे पहला बच्चे पूछते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कार्बन इज नोन एज अ हाइड्रोकार्बन। वो रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या करेगा, ऐसे रिएक्ट करवाएगा। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन react with carbon is known as a hydrocarbon. The reaction in which hydrogen react with carbon is known as a hydrocarbon. Then hydrocarbon are of two types. What is saturated, unsaturated? Saturated hydrocarbon are those hydrocarbon in which all are single bond. क्यों? पीछे क्या है एन, पीछे क्या है आइन, पीछे क्या है इन। सैचुरेटेड के पीछे क्या है एन, और एन क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। पीछे क्या है आइन, आइन क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। पीछे क्या है इन, इन कितने बनाते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विच मेक्स ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? आर दोस दैट कंटेन एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस दैट कंटेन एल्काइन और एल्कीन। फिर एल्केन आता है। एल्केन आर द हाइड्रोकार्बन that are present in saturated and it always make a single bond. Alkyne बोलेगा। Alkyne are the type of unsaturated hydrocarbon which always makes a triple bond. Alkene are the types of such unsaturated hydrocarbon which always make the double bond. I hope clear है। और आज की क्लास हमारी यहीं तक की थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड तक की। आई होप आज को सब क्लियर हो गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड की। देन मैंने एन, इन, आइन भी बता दिया। देन आपको मॉलिक्यूलर कंडेंस और कंप्लीट। आई होप आपको अभी मॉलिक्यूलर कंडेंस और कंप्लीट में प्रॉब्लम होगी, मैं फिर से आपको अगली एक और क्लास में समझाऊंगा ये। देन एन, इन, आइन पता होगा। एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड। ए मतलब ए सबसे पहले आता है, ए के बाद ई आता है ना। ए सबसे पहले आता है, ए बी सी डी ई, ए के बाद ई आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, ध्यान से देखो। चलो इसका एक वो बता दो। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, एक सेकंड, ए, ई और वाई, यही स्टार्टिंग होता है। ए एन ई, एन ई और वाई एन ई। एन ई सेम है, एन ई सेम है और एन ई सेम है। इनको काट दो, इनको काट दो, इनको काट दो। ए सबसे पहले आता है तो फर्स्ट, ई सबसे बाद, ई क्या होता है, वाई से बाद में आता है, पहले आता है, बाद वाई से पहले आता है तो सेकंड, वाई सबसे लास्ट में आता है, तीन। बस ए सबसे पहले, ई सेकंड पे, आई पीछे। मैं ए वाई ई भी लिख दूं, ए वाई ई, तब भी ए सबसे पहले आता है, बाद में उसके बाद वाई आता है या ई आता है, ई आता है, तो इधर क्या आ जाएगा 2। वाई क्या आता है, सबसे लास्ट में आता है, तो उधर क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब ए हमेशा बनाता है एक बॉन्ड, वाई बनाता है मतलब 3, तो मतलब 3 बॉन्ड, और इन मतलब 2, मतलब 2 बॉन्ड। सबसे इजी बात है। ए मतलब सबसे पहला एक बॉन्ड, वाई मतलब तीसरा सबसे लास्ट में तो 3 बॉन्ड, ई मतलब दूसरा तो 2 बॉन्ड। क्लियर है? आई होप आज की क्लास क्लियर होगी। हमने NE9 और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पढ़ा है। आई होप आज आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको डाउट नहीं आते सब। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, उसमें आप बता सकते हो। मैं ना हमारी क्लासेस, लाइव क्लासेस भी आती हैं, आप आई होप आप लाइव क्लासेस भी देखा करें। आज की जो लाइव क्लासेस हमारी 9 PM पे मेरा शेड्यूल है। कौन सी? 8-11 की हमारी क्या है, लाइव क्लासेस। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। बाय बाय स्टूडेंट।